پھر اس کے بعد ان کی ممی ان کے آگے ہار مان لی، پوزیشن کی ہوئی ہے 1820 کو، 1850 کو ان کو اجازت ملی کہ وہ جائیں اور جا کے اپنی ایجوکیشن جرمن میں نرسنگ کی حاصل کر سکیں۔ اب یہ تعلیم حاصل کر رہی تھی کہ برٹش میں ایک جنگ چل رہی، جب یہ فوجی زخمی ہونا شروع ہوئے، ان کو نگلیکٹ، جو زخمی ہو جاتے تھے ان کو ایسی جگہوں میں پھینک دیا جاتا تھا جہاں زخم گندگی کے انبار تھے، اور گندگی اتنی زیادہ تھی کہ وہ جو لوگ تھے، وہ جو فوج تھی برٹش، وہ مرتے چلے گیا، دیش بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، برٹش گھبرانا شروع ہو گئی کہ کیا ہے۔ چونکہ فلورنس نائٹنگیل کو جب یہ پتا چلا کہ برٹش میں جتنے فوجی مرتے جا رہے ہیں، جن کا برین کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے، تو گورنمنٹ نے کچھ اناؤنسمنٹ دی، وہ جب خدمت کر رہے، فلورنس نے اپنے آپ کو وقف کیا اور وہ گئی، اور وہاں پہ جب انہوں نے اس کے پیچھے چند لڑکیاں بھی گئی تھی وہ ٹریننگ والی تھی، انہوں نے جا کے سب سے پہلے دیکھا کیڑے مکوڑے گندگی، ان کو لائٹ نہیں، پہلے اپنے ہاتھوں سے صفائی شروع کی، جو ہماری نرسنگ کا ایک حصہ ہے۔ ہم جب PTS میں جاتی ہیں تو 3 مہینے ہم سے صفائی کروائی جاتی تھی، اور آج کی نرسیں شاید کرتی ہے کہ نہیں، لیکن ہم 3 مہینے نرسنگ میں صفائی کرتی تھی، بیڈ صاف کرتی تھی اور بیسن صاف کرتی تھی، ہر بیڈ تک دیتی تھی۔ یہ جو بنیاد رکھی تھی وہ فلورنس نائٹنگیل نے رکھی تھی۔ پھر فلورنس نائٹنگیل نے یہ پوری اپنے ہاتھوں سے جھاڑو دیا، صفائی کی، لڑکیوں کے لیے صفائی۔ یہ آج کی ہائیجین، ہم ہائیجین کو کہتے ہیں، یہ نرسز کی بنیاد رکھی ہے۔ یہ انہوں نے معاف لگایا، انہوں نے صفائی کی، اور جب دن رات ان فوجی کی صفائی کی، ان کی ڈائٹ کا خیال رکھا، تو ریشو کم ہوتا گیا، ہاللویا، اور کم سے کم اور ہوتا گیا، جب اتنا زیادہ ریشو تھا وہ ڈاؤن ہو گیا۔ جب ڈاؤن ہونے کو پتہ چلی کہ ہائیجینک کی وجہ سے ان کی ڈیتھ کے ریشو بڑھ رہے تھے، پھر ایک دم مناسبت ہونا شروع کیے کہ اب کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے گورنمنٹ نے اور کچھ پاس کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے ڈاکٹر چاہیے، میں تو نرسنگ کے لیے مجھے ڈاکٹر بھی چاہیے۔ پھر ان کی سنی گئی، کیونکہ یہ اس زمانے میں اخباروں میں آنا شروع ہو گیا، تو انہوں نے گورنمنٹ آف برٹش نے ریفارم میں فوراً فلورنس نائٹنگیل کے کیا ڈاکٹرز بھیجے، اور وہاں صفائیاں شروع ہو گئی، اور سب کے سب مریض ٹھیک ہونا شروع ہو گئے۔ جب ٹھیک ہونا شروع ہو گئے سب مریض، تو اس کے بعد فلورنس نائٹنگیل اخبار میں چرچے ہونے لگے، اور وہ ایک گمنام کمرے میں صفائی اور خدمت کرتی رہی، ان کو نہیں پتا دنیا میں اس کا نام کہا جا رہا تھا۔ وہ ایک کمرے میں بند تھی، اور انٹرنیشنلی طور پہ فلورنس نائٹنگیل کو اجاگر کر دیا گیا، اور اس کو یہ کہہ دیا گیا کہ جب سے فلورنس نائٹنگیل یہ پورے یورپ میں فوجی ٹھیک ہونے کے ساتھ اپنے گھروں میں آنا شروع ہو گیا۔ جب فلورنس نائٹنگیل واپس آتی ہے، اپنے لوگوں میں آتی ہے، تو وہ جب ان کو ویلکم کرتے ہیں، وہ روئی، اور اتنا روئی کہ ایک نرس کے ہاتھوں سے ایک موجزہ ہوئی۔ آج بھی نرسوں کے ہاتھوں سے موجزے ہوتے ہیں۔ کیونکہ نرسز آج بھی اپنے گھروں کے موجزوں کیسے بدلتی ہیں؟ آج نرسز کے بچے ڈاکٹرز ہیں، اپنے گھروں کے نقشے بدل دیے، اپنی قوم کا نام اونچا کیا، اپنے لوگوں کا نام اونچا کیا۔ دنیا میں آج نرسز کو کہاں کی چاہیے؟ انٹرنیشنل کورونا کے بعد نرسز کو دنیا میں پہلی خاتون نے نرسز کو خدمت کے ایوارڈ میں سیلیوٹ کیا گیا۔ نرسز کو سیلیوٹ کیا گیا، نرسز کو اپریشیٹ کیا گیا، کیونکہ اس میں ہمدردی تھی۔ فلورنس نائٹنگیل اسی بیماریوں میں اپنی اس ایج میں جا کر پھر وہ ان کی ڈیتھ بھی ہوئی، کیونکہ اتنا کچھ انہوں نے سہا، اتنا ساری زندگی وقت کر دی پیشنٹ کو، ان کو کوئی واپس لگ گیا، پیشنٹ سے لگ گئی، ان کی اسی طرح خدمت کرتے ہوئے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ان کی ممی بھی تھے، ان کی شادی نہیں کری انہوں نے، اسی لیے کہ اس نے اپنا شادی اپنا جو کمنٹ تھا وہ سال کا سال اپنی پروفیشن سے کر دیا۔ میں آج اپنی نرسز کو صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس نے کہا، فلورنس نے کہا کہ انسانیت، مذہب
कहूँगा इंसानियत से बढ़ के जो इंसान से प्यार करता है वो अव्वल है। मैं अपनी नर्सी से कहूँगी आप फख्र करने का नर्स हो और अपने घर की खिदमत करती हो, आप मुल्क में करती हो, दुनिया में करती हो। मैं अपनी नर्सिस को आज सैल्यूट मैडम इधर एंड आमना एंड शबाना बहुत आपका शुक्रिया। आप लोगों ने एफर्ट की, खास करके भाई ने बहुत एफर्ट की। इससे मैंने भाई की यार भाई मैं चाहती हूँ कि एक ऊपर होना चाहिए इंटरनेशनल सिस्टर जिस दूसरे से बढ़ शुरू हो गया। थैंक यू रायन सबने बहुत अच्छा बोला, खासकर रोजनी डैडी ने भी काफ़ी अच्छा सा एक्सप्लेन किया। और आई थिंक काफ़ी सारे लोग होंगे जो शायद इतना नहीं जानते होंगे, लेकिन उनकी एक्सप्लेनेशन ने काफ़ी लोगों को इस चीज़ से आज़ाद किया कि तुरंत स्टडी कौन की और उनकी ज़िंदगी किस तरह की थी और कैसे गुजरी। तो आज का मेरा मौजूद भी कुछ ऐसा ही है, इंटरनेशनल नर्सिस डे जो आज हमारा मौजूद है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का दिन पूरी दुनिया में इंटरनेशनल नर्सिस डे के हवाले से मनाया जा रहा है, जिसमें फ्लोरेंस नाइटिंगेल की आज बर्थडे भी है, जो कि फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिस की फाउंडर थी। तो आज इनका दिन इसी उससे मनाया जा रहा है और आज की थीम है नर्स अ वॉइस ऑफ फीलिंग। हमें चाहिए कि नर्सिंग में सरमाया करें और इनके हकूक़ की हिफाजत करें। इस साल यही मौजूद मकसद है। नर्सिंग की तरह बहबूद पर काम करें, नर्सिंग की तालीम के लिए खर्च करें, नर्सिंग की जॉब की भी सरमायाकारी करें, नर्सिंग को अप्रिशिएट और मोटिवेट करें, नर्सिंग की बेहतर सेहत और कारकर्दगी के लिए सरमायाकारी करें। हमें चाहिए कि नर्सिस जो दिन रात आपका ख्याल रखती हैं इनकी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि नर्सिस आपके साथ उस वक्त होती है जब आपके अपने आप को छोड़ के जा चुके होंगे। थैंक यू। हैप्पी नर्सिस डे। आप सबको मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। और जैसा कि वक्त के मुताबिक मैं कुछ लेट था कुछ मजबूरी की वजह से, और आज की शाम जो है नर्सिस के नाम है और हमारे लिए बाइस फख्र कि आज की शाम तमाम कराची से नर्सिस यहाँ मौजूद हैं और तमाम ये वो एक पेशा है जिस पेशे को खिदमत देर रात लोग करते हैं और अपने वक्त में से वक्त निकाल कर अपनी ज़िंदगी, अपना लहू, अपना पसीना और उन तमाम मरीज़ों के लिए बहाते हैं जिनको उनकी ज़रूरत होती है। क्योंकि अक्सर औक़ात जब हम घरों में अपने मरीज़ों को शायद हम वो सहूलियात मुहैया नहीं कर पाते जो एक नर्स, एक डॉक्टर, एक वार्ड बॉय, एक जो हाउस कीपिंग स्टाफ होता है हॉस्पिटल के अंदर, जो उस काम को अप टू डाउन जो है वो देख रहा होता है। हमारे लिए आज की शाम बड़ी बाइस बरकत है और आज की शाम नर्सिस के नाम है, क्योंकि जिस तरीके से मैडम ने इससे पहले आपको सबको बताया कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी एक वो नर्स थी जिन्होंने अपनी जिंदगी को सर्व किया इस वक्त के लिए कि आज पूरी दुनिया नर्सिस डे जो 12 मई है इंटरनेशनल डे के मुताबिक मनाती है। तमाम नर्सिस के नाम एक शेयर करता चलूंगा कि हिम्मत और हौसला जाबाजी से काम लेते हैं, हिम्मत और हौसला जाबाजी से काम लेते हैं, मुश्किलों में भी ये खुद को थाम लेते हैं। हिम्मत और हौसला जाबाजी से काम लेते हैं, मुश्किलों में भी ये खुद को थाम लेते हैं। थकते नहीं अपनी मेहनत से, थकते नहीं ये अपनी मेहनत से, इसलिए ये नर्सिस सबसे सलाम लेते हैं। आप सबको सलाम। उसी रसूल अजीम नाम में यहाँ मेरी बैठी मेरी नर्सिस बहनें, दोस्तों, साथियों, सबको सलाम। और आज का जो दिन है नर्सिस डे के हवाले से जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में मनाया जाता है पूरी दुनिया में, मैं ये समझता हूँ कि नर्सिंग वो पेशा जो उस वक्त इंसान को संभालता है जब उसके माँ बाप, बहन भाई, सगे रिश्तेदार भी उसका साथ छोड़ जाते हैं। ये नर्सिस ही हैं जो इंसान को दिलासा देती हैं, उनको संभालती हैं, उसकी तबादरी करती हैं। तो ये यकीनन ये पेशा, इससे पेशे से वाबस्ता लोग खराज तहसील के
लाइफ हैं, मुश्किल हैं, और मैं तमाम दुनिया की नर्सेस को सलूट पेश करता हूँ। वो जिस तरीके से हालिया दिनों में कोविड-19 में जिस तरीके से शीशा बनाई दीवार की तरह फ्रंट एंड उन्होंने काम किया, जब हर इंसान से डर रहा था, लेकिन ये नर्सेज थी जो इंसानों को हौसला दे रही थी, उनको तकलीफ दे रही थी। तो मैं समझता हूँ कि इनकी खदमात को जमा भी है, इनकी खदमात को सराहा जाना चाहिए। हमेशा एक दिन नहीं, 12 महीने मैं समझता हूँ हर दिन उनको सराहा जाना चाहिए, क्योंकि हर दिन कोई हॉस्पिटल में जाकर 12 महीने के अलावा बंद नहीं हो जाते। साल के 365 दिन 24 घंटे नर्सेज मरीजों की तमाशाई कर रही होती हैं, और ये मैं समझता हूँ कि अजीम पेशा वाकई जिसमें इंसानियत की खिदमत में बढ़ाती है, और ये वाकई इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। मैं तमाम नर्सेज को, दुनिया के नर्सेज को सलाम पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मैडम रोशनी और उनके साथ जो है मिस शबाना है, मिसेस शबाना, और इसके साथ साथ आप हैं, सावी इस्लामिक चर्च है, और बहुत ही खिदमत का पेशा लिए लोग यहाँ मौजूद हैं। क्या कहते हैं? जी, मैंने पहले भी इनको बताया कि आज जो नर्सों ने यूनिफॉर्म पहना है ना, ये इनकी पहचान है, और हम भी यूनिफॉर्म पहनते हैं और अपनी पहचान करवाते हैं। और खिदमत मेरे ख्याल में कोई आसान काम नहीं है। नर्स का पेशा और खिदमत का दौरा जैसे कि हमारा है, आसान नहीं है। मुझे पता है कि कितना मुश्किल ये वक्त होता है जब हम अपने अजीजों को छोड़कर दूसरों की खिदमत करते हैं, अपने घर बार को छोड़कर दूसरों की देखभाल करते हैं। और ऐसे ही नर्स भी हैं जो अपने बच्चों को छोड़कर, अपनी फैमिलीज को छोड़कर, अपना कीमती वक्त निकाल कर मरीजों को देखती हैं, उनकी ईमानदारी करती हैं, उनकी देखभाल करती हैं। और ये कोई आसान काम नहीं है, और ये भाग दौड़, ये रनिंग उनके लिए बरकत का बायस भी है। नर्स का मतलब है पालना, हमदर्द बनना, और ये बहुत ही खूबसूरत एक पेशा है, खिदमत है। और मैं सल्यूट करती हूँ उन तमाम तर नर्सेस को जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और जो नहीं भी हैं, उनकी सारी खिदमत को सराहते हुए मैं उनको खराज तहसीन पेश करती हूँ, क्योंकि उनकी खिदमत के वसीले से ही दूसरे शिफा पाते हैं, दूसरे बरकत पाते हैं। और ये बहुत ही बड़ा जो है बरकत वाला हिस्सा है जो आप अदा करती हैं। मैं चाहूँगी जितनी भी नर्सेज यूनिफॉर्म में जाकर खड़ी हो जाए, अपनी सीट पे खड़ी हो जाए। बिल्कुल। हम ना जिस तरीके से मैडम रोशनी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आज की शाम जो है नर्सिस का दिन है, लेकिन मैं सराहना करूँगा यहाँ पर जो FM 100 पाकिस्तान है, इसके साथ साथ DGT है, DGL है, इसके साथ साथ जेकब जावेद टेलीविजन है, RTGTV है, और हमारे उनके बाइस से फखर है कि तमाम लोगों ने इस आज की शाम को जो है चार चांद लगाने के लिए, आज की शाम को अपने नाम करने के लिए बड़ा ही एक शानदार प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें ये सिंगरा सावी इस्लामिक चर्च सदर को, इसके साथ साथ मैडम रोशनी को, मैडम शबाना को, और कैप्टन आमना, बिल्कुल आप साथ साथ हैं आपको। और आज की जो शाम है, आप सबको मैं एक जिस शख्सियत को आपके सामने दावत देना चाहता हूँ, जो पुराने नर्सेज होंगे वो जरूर इस चीज को याद करते होंगे कि किसी दौर में कराची शहर में जो है सिस्टर डीमो ने काम शुरू किया था प्राइवेट नर्सेज का, और उसके बाद फिर एक बड़ा अदालत जो है अजीब जितनी नर्सेज खड़ी हुई थी, सबसे बड़ी बात है कि वो खड़ा इसलिए कहता है कि आप सब मिलकर तमाम नर्सेज के लिए तारीफ करें, हमारे वो लोग